can start your journey. If you really understand why do you want to lose weight, or why do you want to get fit or healthy, then these challenges and these trainings become a lot मोटापे से हो रही परेशानियों को देखते हुए ऑटिज्म मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने समग्र ओबेसिटी क्लिनिक की शुरुआत करी है। हमें गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर के साथ मोटापे से निपटने के लिए समग्र ओबेसिटी क्लिनिक की शुरुआत करते हुए अभिनेता राम कपूर ने कहा कि फिटनेस का मतलब केवल वजन मापने वाली मशीन पर निर्भर नहीं, जिंदगी में ऊर्जावान रहना भी स्वास्थ्य के लिए और जरूरी है। फिट रहना चलने की प्रक्रिया है। मंजिला kind of becomes so much easier, because even though you're getting food cravings, you've gotten in touch with why it is so important to you. That takes priority rather than the food. Since you are in the panel and you are a bariatric surgeon also, so understanding Mr. Ram Kapoor's journey, so you can guide us, what is the role of a bariatric surgeon in the journey for anybody to have a, consider weight loss as a goal? Okay, so as you were rightly mentioning, that if there is a shortcut, you adopt the shortcut because life is short. And probably as a surgeon, we give the shortest cut to achieving this goal. But then I think we all should understand that, obesity is a disease. And it brings with itself many other diseases. So it's not just कि हम मोटे हैं, मोटे के साथ many of you or many of us will get diseases like diabetes, blood pressure, heart problems. You do a scan of your tummy, you will find you have fatty liver. People will have pain in the joints because of osteoarthritis. So many things, even bad diseases like cancer, they come with being overweight or obese. Now, the most important thing here is to understand that obesity is a problem. You'll find many people who are overweight, but then that is a part of their life. They don't understand. So just to give you an example, I had a patient, this girl came with her mother and she was 130 kilos and her mother was worried. I was 155. Oh my God. So 130 kilos, mother was worried that she is of a marriageable age, and sir, आप इसकी सर्जरी करके आप इसको पतला बना दीजिए. And then I had a conversation with that girl, and the girl was like, sir मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं मम्मी को ही क्यों चिंता होती रहती है मेरा वेट तो बिल्कुल ठीक है. So I think the most important thing here is to understand the problem and understand that this is not the right way to live. And this is not the healthy way to live, and this is something which has a potential to get you many diseases. It is a process that is going to happen, and it should be something which is sustainable. नहीं हम आज करते हुए फिर हमने दोबारा वेट नहीं कर लिया. बॉडी फर्क है, हर एक इंसान का बेसिक मेटाबॉलिक रेट फर्क है, हर इंसान की एक एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी फर्क है, हर इंसान की डाइट कंट्रोल करने की कैपेसिटी फर्क है, हर इंसान की जेनेटिक फर्क है. तो हमको एक राइट अप्रोच को अडॉप्ट करना है, उस रास्ते पे चलना है. इंडस्ट्री में लोगों को मोटापे का असर पड़ता है, वो गलत है. मेरी इंडस्ट्री में सब लोग फिट है, सब लोग का सिक्स पैक है, तो मेरी इंडस्ट्री में मोटापे का कोई असर नहीं होता है. जैसे मैं अलग था, मैं मोटा था, लेकिन लकीली मेरे को फिर भी लोगों ने अपनाया और लोगों ने प्यार किया, और उस वजह से मैं 15 से 20 साल मोटा रहा, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे काम मिल रहा था और पैसे मिल रहे थे और सब कुछ हो रहा था. लेकिन मेरी इंडस्ट्री ऐसे नहीं है, मतलब मोटे लोग बहुत कम है ना मेरी इंडस्ट्री में, सब लोग फिट ही है. बॉडी फर्क है, हर एक इंसान का बेसिक मेटाबॉलिक रेट फर्क है, हर इंसान की एक एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी फर्क है, हर इंसान की डाइट कंट्रोल करने की कैपेसिटी फर्क है, हर इंसान की जेनेटिक फर्क है. तो हमको एक राइट अप्रोच को अडॉप्ट करना है, उस रास्ते पे चलना है. काफी दोस्त लोग और फैमिली वालों को जानता हूँ जिन्होंने भी किया है, और वो उन्होंने या तो अपने डॉक्टर की हेल्प ली है या कोई न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प ली है. तो किसी से हेल्प लेना एक्चुअली बहुत अच्छी चीज होती है. और
मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मैंने जो किया है वो सही है या गलत है, वो सिर्फ मेरे लिए है, राइट? किसी और के लिए नहीं है। हर किसी चूज करना है, और किसी के लिए डॉक्टर्स, किसी के लिए सर्जरी, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए एक्सरसाइज, हर कोई अलग है। सबसे पहले तो ये जानकारी लोगों को जानी चाहिए। पहले हम सोचते थे कि मोटापा एक लाइफस्टाइल डिजीज है, लेजी मैन सिंड्रोम कहा जाता था। ऐसा नहीं है। मोटापा इटसेल्फ इज अ डिजीज, ओबेसिटी इज अ डिजीज, क्लासिफाई हो चुका है। उसको जानते हुए उसके बड़े रेमिफिकेशंस हैं, उसको जानते हुए हमने कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक बोलने का प्रयास किया है, और इसमें हमारी मल्टीपल स्पेशलिटी टीम्स इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जो लोग ओबीज होते हैं, जिनका बीएमआई भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा है, उनको घुटनों की तकलीफें, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस की तकलियाँ, सांस की दिक्कतें, उनको डायबिटीज़, उनको हार्ट की तकलीफें, ये सब चीज़ें समझते हुए हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगाने की कोशिश की है इस कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक में, और हमने काफ़ी क्लिनिशियंस को इन्वॉल्व किया है। ये सारा जो क्लिनिक है ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे आधारित होगा, यानी कि जो प्रमाण हमारे पास साइंटिफिक प्रमाण है उनके ऊपर आधारित होगा। और इसमें जो कॉस्ट की बात आप किसी पेशेंट देखिए, तो कॉस्ट यूटिलाइज करके की जाती है। जैसे कि डॉक्टर अमित ने बताया कि बिहेवियरल थेरेपी आप सब लोगों को पता है एक बीमारी है, और हर पेशेंट को एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच इस हॉस्पिटल में दी जाएगी। हर एक की मोटापे की प्रॉब्लम अलग है, हर एक का डिग्री ऑफ ओबेसिटी अलग है, हर एक का बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स BMI जो है वो फर्क है। तो एक इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से क्या उसको सिर्फ एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या उसको बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है, क्या उसको मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या क्या वो इंटरव्यू है और उसको सर्जरी की ज़रूरत है, ये सारा प्रॉपर आधुनिक तकनीकों से उसको असेस किया जाएगा और पेशेंट्स को इसके हिसाब से